Welcome, students, to the new lecture of our series Electricity and Magnetism. Today, we are discussing about a new concept named the curl. You can see on your screen the topic is curl. We have discussed this third operation continuously by the operation of vector operator del. This is the third one. First, we are discussing about the gradient, which is the first operation of vector del on a scalar quantity. And when vector del operates on a scalar quantity, we get a vector, and we do there mathematics related to the gradient, and then going for the physical significance which related to that particular topic, gradient. Then second operation of vector operator is when we are discussing about the topic divergence. Divergence is the dot product of vector operator del and a vector quantity, any vector quantity, del dot v. We do there the mathematics related to the divergence, and then goes for the physical significance which related to that particular topic. Today we are discussing about the new concept named curl. Definition is you can see on your screen. From the definition of del, we can construct the curl of a वेक्टर क्वांटिटी. मीन्स आप अगर किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का कर्ल कैलकुलेट करना चाहते हैं, मेज़र करना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो ये ज़रूरी है कि आप उस वेक्टर क्वांटिटी को चूज़ करें जिस वेक्टर क्वांटिटी का आपको कर्ल निकालना है. कर्ल आप किसी भी स्केलर क्वांटिटी का नहीं निकाल सकते. कर्ल निकालने के लिए अगर आपको कर्ल चाहिए तो यू हैव टू बी टेक अ वेक्टर क्वांटिटी. एंड बाय द डेफिनेशन ऑफ मैथमेटिक्स, इफ यू go about this operation del cross v is any vector quantity, then this is what you can obtain named as curl. This is the mathematical operation which can be obtained by this equation del cross v equal to I del over del x plus j del over del y plus k del over del z cross I vx plus j vy plus k vz. मीन्स वेक्टर डेल का जो ऑपरेशन है हमारे पास, और जो हमारे पास वेलोसिटी के जो कंपोनेंट्स हैं आई जे के यूनिट वेक्टर्स की डायरेक्शन में, उनको हम एक डिटर्मिनेंट की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं. ये इस तरह से लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट की फॉर्म में, जैसे आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे. यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन नाउ. ओके, दिस इज आई जे के, द फर्स्ट component of vector operator del by del x, then the second component del by del y, then the third component del by del z, and the last row is the first component of vector quantity v, that is vx, second is vy, and third is vz. We can easily expand this determinant. आप सब लोगों ने किया होगा 12th स्टैंडर्ड पे. आप कैसे करते हैं कि
पहले आई का कंपोनेंट निकालते हैं। आई का कंपोनेंट, आई का जो मल्टीप्लिकेंट आप इसे बोल सकते हैं, ये आएगा जे का डेल वी एक्स ओवर डेल जेड एंड के कंटेन दिस multiplicand. Okay, now we can see that there are three, here you can see that we obtained here three component I related to I, j and k, and you can easily see that when we take the component of I, we never get a quantity related to x. Same is here and same is here. This suggests that, notice that the curl of a vector function v is like any क्रॉस प्रोडक्ट, जैसे आप पहले भी पढ़ते आए हैं, किसी भी क्रॉस प्रोडक्ट की तरह आप ए क्रॉस बी का क्रॉस प्रोडक्ट आपने पढ़ा था, और सेम फॉर्म में हम वहाँ उसे देखते हैं कि डिटर्मिनेंट फॉर्म में हम ए क्रॉस बी को कैसे पढ़ सकते हैं। द कर्ल ऑफ ए स्केलर क्वांटिटी इज अ मीनिंगलेस कंसेप्ट, यानी अगर आप कहें कि आपको कर्ल निकालना है किसी भी स्केलर क्वांटिटी की, से यू कैन, if you can write del cross t, t is a scalar quantity, then this is nothing. This mathematical term has no concept, this has no ground. Okay, so this is the wrong way to predict the curl of a scalar is a meaningless concept. Okay, so you cannot do that. If you talking about this particular topic curl, then you have to be concentrate on a vector quantity. A vector quantity only can give you the curl of the point in question. Okay, now थोड़ा सा और मैथमेटिक्स इसमें देख लेते हैं कि इसके पीछे का और क्या मैथमेटिक्स हो सकता है। Here you can see, अगर आप किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, तो हमने वहाँ भी जब हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालते थे तो हमने ये सीखा था कि अगर ए क्रॉस बी आप किसी भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, तो आपके पास जो रिजल्ट आता है वो आता है ए बी साइन थीटा एंड हियर इज एन कैप. एन कैप इज द नॉर्मल यूनिट वेक्टर pointing perpendicularly to the plane of vector A and vector B. Same here. When a del operator operates on a vector quantity or cross product with a vector quantity V, then you can easily see on your screen that vector del is already a vector operator. इसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं कि इसे हम पूरी तरह से वेक्टर नहीं कह सकते, क्योंकि ये कुछ कंडीशंस तो इसकी ऐसी होती है, कुछ आप इसके कहें कि कुछ गुण, कुछ क्वालिटीज़ इसकी ऐसी होती हैं जो वेक्टर से मैच करती हैं, और कुछ क्वालिटीज़ इसकी ऐसी हैं जो वेक्टर को मैच नहीं करती। तो हम इसे ना तो कम्प्लीटली वेक्टर कह सकते हैं और ना ही आप इसे इस बात से नकार सकते हैं कि ये वेक्टर नहीं है, बिकॉज इट हैज़ थ्री mutually perpendicular unit vectors I, j, k, l. You all familiar with that? Okay, so when a vector cross with a vector, then you can definitely get a vector quantity. That is the concept of curl. Okay, so that is the mathematics behind this concept. Okay, more summarizedly आप इसे बोल सकते हैं कि vector operator operates on a vector quantity with the cross product. With the cross product, then you can get a vector. Okay, ये मैथमेटिक्स है कर्ल के पीछे का। अब
अब ये हुआ मैथमेटिक्स ऑपरेशन। अगर आपको पूछे एग्जाम में आता है आपके पास कि व्हाट इज कर्ल, देन यू कैन इजिली मैथमेटिक्स देयर दैट डेल क्रॉस एनी वेक्टर क्वांटिटी से f, del cross f is the curl of vector quantity f. If you can write del cross v, then you are calculated the curl of vector v. If you can write del cross e is the vector field intensity, electric field intensity, then you are calculating here the curl of vector quantity E, means you are calculating the curl of electric field intensity. Okay, so this is, now we are talking about the geometrical interpretation of curl. What is the geometrical interpretation or physical significance of curl? कर्ल होता क्या है, इसमें फिजिक्स कहाँ है? तो कर्ल के बारे में बात करें तो as you can see on screen, the name curl is also well chosen because del cross v is a measure how much the vector v curls around the point in question. यानी कि ये इस बात का मेजर है कि वेक्टर v किसी दिए गए पॉइंट के अराउंड कितना कर्ल करता है, कितना घूमता है. दैट इज द मेजर ऑफ कर्ल, दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ कर्ल. बिकॉज इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, then it definitely have magnitude as well as direction. You can see two figure on your screen, the figure A, the figure B. Both figure has a substantial curve because अगर आप यहाँ देखें पहले वाली फिगर में, तो ये जो कर्लिंग आप देख रहे हैं, घूम जैसे चक्रवात, आप इसे वॉशिंग मशीन काम करते, उस तरह का एक कंसेप्ट है. तो आप ये देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो पॉइंट्स कर रहे हैं ये छोटे छोटे एरोज, तो ये किसी प्लेन में किसी पर्टिकुलर पॉइंट के चारों तरफ कर्ल्स कर रहे हैं, घूम रहे हैं. ओके, इन द फर्स्ट फिगर. इन द सेकंड वन यू कैन सी दैट कुछ एरोज पहले इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन में जा रहे हैं, और फिर कुछ एरोज वापस आके इधर निगेटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन में आ रहे हैं. यानी वो कहीं से कर्ल्स होके आ रहे हैं, यानी कहीं से घूम के आ रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है, मूव कर रहे हैं, क्या, किसी पर्टिकुलर पॉइंट के चारों तरफ. तो ये जो कंसेप्ट है ये कहलाता है कर्लिंग, कर्ल्स अराउंड अ पर्टिकुलर पॉइंट. ओके, यू कैन सी हियर in both the figure a vector quantity which are talking about have a substantial curl pointing in the z direction, pointing in the z direction. तो कर्ल की अगर डायरेक्शन आपको निकाले तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन इन विच एनीथिंग इज रोटेटिंग, एंड जीरो डाइवर्जेंस. दैट इज द पॉइंट यू हैव टू बी फोकस्ड, दैट इनके पास कर्ल तो है, इनका इन दोनों फिगर में सबस्टेंशियल कर्व के बारे में बात की गई है, लेकिन अगर इनका डाइवर्जेंस कहे आपको कोई निकालने के, तो डाइवर्जेंस के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि डाइवर्जेंस आपको किसी पर्टिकुलर टूरिस्ट स्पॉट का एक उदाहरण दिया गया था कि अगर कहीं चोपता जैसी जगहों पे आप बात करें कि कुछ यात्री जो टूरिस्ट हैं वो किसी पर्टिकुलर डे पे आते हैं और उसी पर्टिकुलर डे पे इतने, सपोज वहाँ से 1000 आते हैं तो 1000 चले गए तो जीरो डाइवर्जेंस, 1000 आए 800 निकल गए तो पॉजिटिव डाइवर्जेंस, 800 आए 1000 निकल गए तो नेगेटिव डाइवर्जेंस. इस सेंस में आप कह सकते हैं. लेकिन यहाँ से अगर आप इन दोनों फिगर को देखें तो यहाँ से ना तो कुछ बाहर निकल रहा है और ना ही कुछ अंदर जा रहा है, केवल एक पॉइंट के किसी पॉइंट के चारों ओर कर्ल कर रहा है, कुछ बह नहीं रहा है यहाँ.
और एक बात फिर से मैं आपको सिग्निफाइज कर दूं कि यहाँ जो क्वांटिटी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो जरूरी नहीं, क्योंकि हमें जब भी इस तरह के टॉपिक हम पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में एकदम वाटर जैसा एक फिगर बन जाता है ऑटोमेटिकली कि हाँ, कि कहीं कुछ आ रहा है तो पानी, कहीं से कुछ जा रहा है तो पानी, कहीं घूम रहा है तो पानी। नहीं, ऐसा नहीं है। ये ये कोई भी वेक्टर, क्योंकि पानी का कोई आप पानी को ऐसा नहीं कह सकते कि एक वेक्टर क्वांटिटी है या एक स्केलर क्वांटिटी। एक वो मोस्ट फिजिकल एग्जांपल है जो हम महसूस कर सकते हैं, जो हम देख सकते हैं, और उन चीज़ों को हम बेहतर तरीके से समझते हैं जिन चीज़ों को हम देख लेते हैं। एक चीनी कहावत है कि 100 बार समझाने से बढ़िया है एक बार दिखा दो। तो मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ जिस फिजिकल क्वांटिटी की कर्लिंग की बात हो रही है, रोटेशन की बात हो रही है, तो वो कुछ भी हो सकता है। वो पानी नहीं है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो सकती है, वो एयर हो सकती है। ठीक है, हमें पानी को इसलिए समझना थोड़ा बेहतर होता है पानी वाले कॉन्सेप्ट से, क्योंकि वॉशिंग मशीन आपने देखी होंगी तो वॉशिंग मशीन में भी वो क्या होता है, कर्ल होता है एक किसी पर्टिकुलर पॉइंट के चारों तरफ। क्या करते हैं, वो जो पानी है, अगर जब तक आप कपड़े नहीं डालते उसमें, तो पानी क्या करता है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट के चारों तरफ कर्ल्स करता है, घूमता है, रोटेट होता है। तो दैट इज द कर्ल। अगर वहां वो घूम रहा है, मशीन ऑन है, पानी उस पर्टिकुलर पॉइंट के चारों तरफ कर्ल्स करता है, तो दैट इज हैव सबस्टेंशियल कर्व। वहां अगर रोटेशन हो रहा है किसी पर्टिकुलर पॉइंट के चारों तरफ, तो दैट फिगर हैव डेफिनेटली हैव ए सबस्टेंशियल कर्व, कर्ल। ओके, तो यू कैन सेट दिस कंसेप्ट in this mode in your mind. ओके, सो अगर इन दोनों फिगर की बात करें तो इनके पास जीरो डाइवर्जेंस है, यहाँ से ना तो कुछ निकल रहा है ना कोई फैल रहा है, तो इनके पास कर्ल है पर डाइवर्जेंस इनका जीरो है। एग्जाम्पल आप पढ़ सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। एग्जाम्पल ये है कि फ्लोट ए स्मॉल पैडल व्हील, ए कॉर्क विथ टूथपिक्स पॉइंटिंग आउट रेडियली would do. If it start rotating, then you placed it at a point of non-zero curl. A whirlpool would be a region of large curl. यानी आप कोई चक्री है आपके पास, ठीक है, पैडल व्हील का मतलब चक्री है आपके पास, तो उस चक्री को एक उन्होंने एक ग्रिफिथ की बुक से लिया हुआ एग्जाम्पल है। एक राइटर है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के, डेविड जे ग्रिफिथ, बहुत अच्छी बुक है, डेविड जे ग्रिफिथ, ये उन राइटर का नाम है और बुक का नाम है उसका एन इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। बहुत अच्छी बुक है, तो वहाँ से ये बुक इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, तो वहाँ से ये एग्जाम्पल लिया गया है। तो इसमें क्या है कि हमारे पास एक चक्री है, चक्री को अगर आप किसी पानी में किसी जगह रख देते हैं, चक्री है, ठीक है, ऐसा मान सकते हैं कि कागज की एक चक्री है हमारे पास जो डूबे नहीं, ठीक है। तो आप अगर उसे पानी में किसी जगह रख देते हैं, ठीक है, तो अगर वो चक्री जिस जगह आपने पानी में रखी है, तो अगर वो रोटेट करना शुरू कर देती है उस जगह, तो आप कहते हैं कि इस जगह पानी में, इस जगह क्या है, एक नॉन जीरो कर्ल है। ठीक है, एक दूसरा उदाहरण इसमें लिखा गया है, आपकी स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे। एक दूसरा उदाहरण मैं आपको बताऊं, दूसरा उदाहरण है वर्लपूल। वर्लपूल का मतलब चक्रवात। चक्रवात अगर आप समझें तो चक्रवात भी जैसे समुद्र में जो समुद्री तूफान होता है, तो उसमें जो लहरें उठती हैं तो गोल गोल उठती हैं, एकदम कर्ल्स करती हैं, एक दूसरे किसी पॉइंट ऑन क्वेश्चन के चारों तरफ क्या करती हैं, कर्ल्स करती हैं। ठीक है, तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ कर्ल। मीन्स ये फिजिक्स है जो आपने पहले इस टॉपिक में मैथमेटिक्स पढ़ा, उसके पीछे आप फिजिक्स कैसे पढ़ सकते हैं, ये फिजिकल कॉन्सेप्ट क्या है। कर्ल कर्ल आप कह रहे हैं ओके,
you can write on that del cross any vector quantity gives you the curl of that particular quantity, that particular physical vector quantity. पर ये हुआ मैथमेटिक्स, मीन्स आप कोई भी क्वांटिटी ले लीजिए, कोई फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी ले लीजिए और उसका डिटरमिनेंट निकाल दीजिए किसके क्रॉस में, वेक्टर ऑपरेटर के क्रॉस में, तो यू कैन इजिली कैन गेट द आंसर ऑफ कर्ल। लेकिन इसमें फिजिक्स तो कहीं है ही नहीं, इसमें तो केवल मैथमेटिक्स किया आपने, एक मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि कर्ल का मतलब क्या होता है, इसके इसमें कर्ल कहाँ छिपा हुआ है, इसमें फिजिक्स कहाँ है। तो कर्ल क्या होता है कि किसी पॉइंट के चारों तरफ अगर कोई भी वेक्टर क्वांटिटी मूव कर रही है, कोई भी कर्लिंग कर रही है, तो मूव करना, रोटेशन करना, नॉट द एग्जैक्ट वर्ड, एग्जैक्ट वर्ड इज कर्लिंग, from where the word curl is coming. Okay, the right word is curl. तो रोटेशन आप यूज कर सकते हैं, बट द राइट वर्ड इज कर्ल। इन जनरल द रोटेशन मीन्स चेंज द वैल्यू ऑफ वेक्टर फील्ड, यानी कि कोई भी वेक्टर फील्ड है आपके पास, यहाँ उसकी वैल्यू कुछ और थी, यहाँ उसकी डायरेक्शन कुछ और है, वैल्यू कुछ और है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों टाइम टू टाइम बदल सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ कर्ल। तो हमने यहाँ 3 ऑपरेशन डेल के पढ़े हैं, तीनों को आप सेपरेटली माइंड में रखेंगे। पहला ऑपरेशन हमने पढ़ा, अगर किसी डेल ऑपरेटर को आप ऑपरेट करते हैं किसी स्केलर क्वांटिटी के ऊपर, ओके, हियर वी कैन राइट इन दिस वे, इफ यू operate a del operator on a scalar quantity. Del is a vector operator, t is a scalar quantity, any scalar quantity. तो ये आपको देता है ग्रेडियंट, कंसेप्ट ऑफ ग्रेडियंट। अगर आप ऑपरेटर डेल का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं किसी भी वेक्टर क्वांटिटी के साथ, तो आपको यहाँ आंसर आता है डाइवर्जेंस का। यहाँ आपके साथ, आपके सामने क्लियर होता है कॉन्सेप्ट किसका, डाइवर्जेंस का। और अगर आप इसी वेक्टर डेल का क्रॉस प्रोडक्ट ले लें किसी वेक्टर क्वांटिटी के चारों तरफ, तो यहाँ आपके पास कंसेप्ट आता है कर्ल का। तो दीज आर 3 ऑपरेशन रिलेटेड टू द वेक्टर डेल in 3 different way, have 3 different physical meaning: gradient, divergence, curl. Gradient is the change in this particular scalar quantity, is the magnitude, and direction is the direction in which maximum change occur in t. Divergence, because this is the dot product between 2 vectors, gives a scalar, so there is no sense of direction. Divergence, how much the vector v diverges, spreading or diverging out or in the point in question. And the third one, the third operation of vector del is del cross v, means named as curl, when a vector operator cross product with a vector quantity named as curl. Also, this operation gives a vector quantity. If vector, then definitely have magnitude and direction. Magnitude, how much the vector curls around the point in question, and direction, perpendicular to the plane in which the curling is occur. Okay, so very clear in mind with these 3 operation of vector operator del. हम इनमें इन ऑपरेशंस को बाद में जो हमारे टॉपिक्स आएंगे, गॉस थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम, तो उनमें हम कहीं ना कहीं इनको यूज करेंगे, तो आप इन्हें वेरी क्लियरली अपने माइंड में सेटअप कर लें। सो
this is the topic. Now move towards another topic, which is a purely mathematical topic, product rules. Product rules, you can calculate the divergence, gradient and curl. Now we are moving towards the product rules. In calculus, the calculation of ordinary derivatives is facilitated by a number of general rules. हम कैलकुलस पढ़ के आए हैं, सब लोग कैलकुलस पढ़ के आए हैं 12th स्टैंडर्ड में, आपने कहीं ना कहीं जरूर पढ़ी होगी कैलकुलस। तो कैलकुलस में कुछ फंडामेंटल्स रूल होते हैं, उन्हें हम यहाँ एक बार समराइज करेंगे, ठीक है। कैलकुलस में कौन से फंडामेंटल रूल होते हैं? मान लीजिए, सपोज कीजिए आपके पास दो फंक्शन है f और g, और वो किसके फंक्शन है? x के फंक्शन है। अगर आप उनका dy/dx निकालना चाहते हैं तो एक रूल आप वहाँ पढ़ के आते हैं। क्या हम इसे मोर कन्वेंटली कैसे लिख सकते हैं? अगर dy/dx ऑफ fx o प्लस gx मीन्स fx और gx दोनों किसके फंक्शन हैं? x के फंक्शन हैं। तो हम वहाँ 12th स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं कि dy/dx ऑफ f plus g, the rule tells us that you first calculate the differential of the first function and then the second function and add them. Okay, you all familiar with that? Now second rule, अगर आप किसी स्केलर से आपने किसी फंक्शन में मल्टीप्लाई, यहाँ जब भी मैं एफ जी इस तरह के नोटेशन यूज करेंगे तो आप जनरली समझेंगे कि ये किसी एक्स के फंक्शन है, ठीक है। ये बार बार शायद रिपीट नहीं होगा। तो अगर आप किसी भी फंक्शन में किसी कोई भी आपके पास फंक्शन है, यहाँ देख सकते हैं आप, अगर आपके पास कोई भी फंक्शन है f और उसमें किसी स्केलर से आप मल्टीप्लाई करते हैं k से और उसका डिफरेंशियल करते हैं, तो आपके पास क्या रूल सजेस्ट करता है कि आप डिफरेंस जो भी आपके पास स्केलर क्वांटिटी है उसको बाहर रखिए और जिसका जो x का फैक्टर है उसका आप डिफरेंशियल यहाँ कर सकते हैं। यू ऑल फेमिलियर विद दैट? देन एक हम प्रोडक्ट रूल पढ़ते हैं। प्रोडक्ट रूल क्या बताता है हमें कि अगर हमें डिफरेंशियल करना है किसी ऐसे दो फंक्शन का जो आपस में मल्टीप्लिकेशन में है, ठीक है, और दोनों फंक्शन x के हैं, तो हमें ये रूल सजेस्ट करता है, क्या रूल सजेस्ट करता है कि आप पहले फंक्शन को जो का तो रखें, डिफरेंशियल करें, दूसरे फंक्शन का प्लस का चिन्ह लगाएं और दूसरे फंक्शन को एज इट इज रखें और पहले फंक्शन का बाद में डिफरेंशियल कर दें। इस तरह के प्रोडक्ट रूल आप कैलकुलस में पढ़ के आए होंगे। फिर एक क्वोशेंट या डिवाइडेशन रूल होता है हमारे पास कि अगर डिफरेंशियल करना है आपको, दो फंक्शन है f और g, फिर से ये किसके फंक्शन है? x के फंक्शन है। तो आपके पास एक डिफरेंशियल रूल होता है कि अगर दो फंक्शन x के एक दूसरे के साथ क्वोशेंट में है या फिर डिवाइडेशन में है, तो आप कैसे कर सकते हैं कि आप पहले फंक्शन को जो का तो रखें, डिफरेंशियल करें, दूसरे फंक्शन का माइनस का चिन्ह लगाए, पहले फंक्शन को जो का तो रखें, दूसरे फंक्शन को डिफरेंशिएट करें और ओवर जी स्क्वायर। दिस इज द सिंपल कैलकुलस। लेकिन ऐसे ही कुछ रूल, ऐसे ही कुछ लॉज हमें देखने को मिलते हैं डेल, ऑपरेटर डेल के विषय में। ओके, तो ऑपरेटर डेल के बारे में अगर रूल्स की बात करें तो यहाँ मैंने साइड में लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं ये वाले, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली हैं, अकॉर्डिंगली का मतलब जैसे आप इधर करेंगे जो ऑपरेशन वैसे ही डेल पे करके देखेंगे, ठीक है। तो देखते हैं डेल क्या आपको आंसर देता है। देखिए, पहले ऑपरेशन की बात करते हैं। जब आपने dy/dx कैलकुलेट किया था ऐसे दो फंक्शन का जो x के फंक्शन थे और आपस में जुड़े हुए थे, आपस में ऐड हो रहे थे, तो वहाँ जो सिंपल डिफरेंशियल करता है वो क्या करता है? पहले एक फंक्शन का डिफरेंशियल प्लस दूसरे फंक्शन का डिफरेंशियल। अगर इसी तरह से आप डेल को ऑपरेट करें किन्हीं दो फंक्शन में, तो से एक्स के ही फंक्शन मान लीजिए आप, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है।
तो आपके पास जो डेल प्रॉपर्टी देता है वो सेम प्रॉपर्टी देता है क्या, जैसी आपको डिफरेंशियल में मिलती है। मीन्स आप पहले वेक्टर ऑपरेटर को ऑपरेट करेंगे फंक्शन एफ पर, और फिर दूसरी बार आप उसी वेक्टर ऑपरेटर को ऑपरेट करेंगे दूसरे फंक्शन जी पर। तो आप बिल्कुल सेम रूल है जो डिफरेंशियल में आपको मिलता है, सेम रूल आप यहाँ भी देख सकते हैं। दूसरा रूल आपने पढ़ा कि मल्टीप्लिकेशन बाय ए कांस्टेंट। तो मल्टीप्लिकेशन जब आप किसी कांस्टेंट से करते हैं तो यहाँ क्या हुआ था कि आपने देखा कि कांस्टेंट बाहर आ जाता है और आप किसी जो फंक्शन आपके पास होता है उसका डिफरेंशियल हो जाता है। तो सेम डेल के साथ भी होता है कि डेल को जब आप किसी फंक्शन से स्केलर से मल्टीप्लाई होता है कोई फंक्शन, तो स्केलर तो बाहर आ जाता है और ऑपरेट किस पे हो जाता है, डेल उस फंक्शन पे ऑपरेट हो जाता है। ठीक है। तीसरा देखिए, और दो तरह से ये रूल हैं, आप यहाँ चेक कर लीजिएगा। ठीक है। तीसरा रूल यहाँ प्रोडक्ट रूल हमने पढ़ा था। प्रोडक्ट रूल में जब डिफरेंशियल हम करते हैं कि दो फंक्शन आपस में अगर मल्टीप्लिकेशन में हैं तो वहाँ हमें रूल सजेस्ट करता है कि आप पहले फंक्शन को जो का तू रखे, दूसरे फंक्शन का डिफरेंशियल करें, प्लस का चिन्ह लगाए, दूसरे फंक्शन को जो का तू रखे और पहले फंक्शन का डिफरेंशियल करें। ठीक है। यहाँ थोड़ा सा आपको अलग तरीके से देखना पड़ेगा। देखिए, यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन। इसको क्योंकि मैं थोड़ा जूम कर रहा हूँ तो इसको आप याद रखिएगा कि हमने यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में क्या ऑपरेशन किया था। क्या ऑपरेशन किया था हमने कि अगर डी बाई डी एक्स आपको निकालना है किन्हीं भी दो फंक्शन का, एफ और जी का, जो आपस में मल्टीप्लिकेशन में है, तो पहला फंक्शन जो का तू रखते हैं, दूसरे का डिफरेंशियल करते हैं, दूसरे को जो का तू रखते हैं, पहले फंक्शन का डिफरेंशियल करते हैं। तो इसे आप माइंड में रखेंगे और दूसरे को चेक करेंगे। ठीक है। ऐसे देखिए, जब ऑपरेटर डेल ऑपरेट होता है किन्हीं ऐसे दो फंक्शन के ऊपर, जो ऐसे दो वेक्टर्स के ऊपर जो आपस में एडिशन में हो, तो यहाँ क्या करते हैं हम कि डेल का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं पहले फंक्शन के साथ और फिर डेल का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं दूसरे फंक्शन के साथ। ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तीसरा जो क्रॉस प्रोडक्ट वाला है, ये वाला मल्टीप्लाई वाला देख लें आप। तो मल्टीप्लाई वाले में क्या होता है कि यहाँ देखें कि डेल क्रॉस ए प्लस बी है, तो पहले आप डेल का क्रॉस करेंगे ए के साथ और ये फिर यहाँ डेल का प्लस का चिन्ह और डेल का क्रॉस करेंगे बी के साथ। एक बात और आप थोड़ा सा माइंड में इस बात को इस तरह से जरूर सोच के देखें इन प्रोडक्ट्स को कि आप कर क्या रहे हैं यहाँ। समझ रहे हो बात को, आप कर क्या रहे हैं। आप देखिए, ये जो पहला टर्म है ये किसी भी वेक्टर का डाइवर्जेंस है। यू कैन सी, ये भी किसी अन्य वेक्टर का डाइवर्जेंस है, ये किसी अन्य वेक्टर का कर्ल है, ये किसी अन्य वेक्टर का कर्ल है। यानी अगर आप ये कह सकें, देखिए सुनिए, कि आप अगर ये कहें कि आप इसको डिफाइन कीजिए डेल डॉट ए को, तो आप क्या कहेंगे फिजिकली, नॉट मैथमेटिकली तो सीधा है कि आई डेल बाई डेल एक्स प्लस जे डेल बाई डेल वाई प्लस के डेल बाई डेल जेड, और इसी तरह से कंपोनेंट फॉर्म में लिख दीजिए वेक्टर ए को आई ए एक्स प्लस जे ए वाई प्लस के ए जेड, और दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले दीजिए। मैथमेटिकल सिंपली आ जाएगा डेल ए एक्स ओवर डेल एक्स प्लस डेल ए वाई ओवर डेल वाई प्लस डेल ए जेड ओवर डेल जेड। मैं मैथमेटिक्स की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ फिजिक्स की, कि डेल डॉट ए आपको बता क्या है, इंफॉर्मेशन क्या है डेल डॉट ए में छिपी हुई। तो इंफॉर्मेशन ये है कि हाउ मच द वेक्टर ए डाइवर्जेस इन और आउट अकॉर्डिंग टू पॉजिटिव और नेगेटिव डाइवर्जेंस अबाउट द पॉइंट इन क्वेश्चन। सिमिलरली अगर आप डेल क्रॉस बी की बात करें तो डेल क्रॉस बी में मैथमेटिक्स नहीं, फिजिक्स। मैथमेटिक्स तो आप कर ही लेंगे, फिजिक्स ये है कि डेल क्रॉस बी इज गिव्स द इंफॉर्मेशन दैट हाउ मच द वेक्टर बी, दिस वेक्टर बी कर्ल्स अराउंड द पॉइंट इन क्वेश्चन। ओके, किसी दिए हुए बिंदु के प्रत्यय कर्ल वेक्टर बी कितनी
तेजी से, कितनी अच्छी तरह से रोटेट होता है। रोटेशन मैं फिर से कहूँगा एक अच्छा वर्ड नहीं है कर्व्स को डिफाइन करने के लिए, पर समझने के लिए, क्योंकि कर्व्स थोड़ा सा एक नया वर्ड है आपके लिए, और अगर आप रोटेशन से आप फेमिलियर हैं पहले से तो वो समझना थोड़ा सा आसान, दैट्स वाई। ओके, तो ये प्रोडक्ट रूल्स हैं जो आपको याद रखने हैं। तो ये जो ऊपर हमने डिस्कस किया, इसके अकॉर्डिंग में हमारे पास 6 प्रोडक्ट रूल आते हैं। इन 6 के 6 प्रोडक्ट रूल को आप स्टडी करेंगे, ठीक है। पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है। 2 ग्रेडियंट के हैं, 2 डाइवर्जेंस के हैं, 2 कर्ल के हैं, ठीक है। एक आध में डिस्कस कर सकता हूँ आपके साथ, जैसे कि आप देख रहे होंगे, माना आपके पास इस रूल, ये रूल है, यानी आप डेल को ऑपरेट कर रहे हैं एफ इंटू वेक्टर ए। ओके, तो एफ इंटू वेक्टर ए पे आप जब ऑपरेट करेंगे तो पहला जो टर्म आएगा मैथमेटिकली, तो वो आएगा एफ बाहर आएगा और डॉट प्रोडक्ट होगा किसका, डेल डॉट ए का, मीन्स डाइवर्जेंस ऑफ ए। और फिर वेक्टर ए बाहर आएगा और ये फंक्शन क्या होगा, डेल डॉट एफ, not f, oh, not dot, del operating on f, that is the gradient. Okay, because you can see clearly here what you can now see. You can see here that del dot f into vector a means f is not a vector quantity, it is a स्केलर क्वांटिटी। अगर ये वेक्टर होता तो इसके ऊपर एरो लगा होता। तो अगर इस तरह का केस आप पढ़ते हैं, इस तरह का केस आप स्टडी करते हैं, तो आपको करना क्या होगा, आपको करना ये होगा कि डेल डॉट एफ को जब आप इवेलुएट करेंगे तो आप क्या करेंगे, जो स्केलर क्वांटिटी है इसको बाहर रखेंगे, डेल डॉट ए निकालेंगे यानी डाइवर्जेंस ऑफ ए निकालेंगे, प्लस का चिन्ह लगाएंगे, वेक्टर ए को बाहर रखेंगे, डॉट प्रोडक्ट किसके साथ करेंगे, डेल डॉट एफ मीन्स डाइवर्जेंस ऑफ f, and divergence of f is a vector, so vector dot vector again gives us a scalar quantity. okay, तो आप लोग ये जो 6 प्रोडक्ट रूल्स हैं जो आपकी स्क्रीन पर हैं, 1 2 3 4 5 और 6, इन तीनों, इन 6 के 6 को लिखेंगे भी और इनको इंटरप्रेट भी करेंगे। मीन्स कि आप ऐसा नहीं कि केवल ऑन द राइट डाउन, नो, आपको समझना है कि हम अगर कहीं क्रॉस कर रहे हैं तो ये क्रॉस हुआ क्यों है, क्योंकि आप ये जानते हैं कि क्रॉस किस किस के बीच में होगा, क्रॉस प्रोडक्ट होता है केवल वेक्टर्स के बीच में। तो वो क्वांटिटी जो दो उस क्रॉस प्रोडक्ट में इन्वॉल्व हैं, दोनों के दोनों आपको दिखनी चाहिए, आप सेटिस्फाइड होने चाहिए कि हाँ ये दोनों जो वेक्टर क्वांटिटी हैं एक दूसरे के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कैसे कर रही हैं, और वो दोनों क्वांटिटी जो उस क्रॉस प्रोडक्ट में इन्वॉल्व है वो वाकई वेक्टर क्वांटिटी है या नहीं, दैट इज द थिंग। Now, it is also possible to generate 3 क्वोशंट लॉ, यानी जब डिवाइडेशन में होते हैं तो ये 3 क्वोशंट लॉ हैं, आप इन्हें भी स्टडी करेंगे, ठीक है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द सेकंड डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेटिव का मतलब ये है कि ये केवल जितने भी ऑपरेशन पहले आपने ये पढ़े हैं, ये ऑपरेटर डेल के सिंगल ऑपरेशन हैं। मीन्स कि आप ये कह सकते हैं कि डेल ऑपरेटिंग ऑन ए स्केलर क्वांटिटी गिव्स यू ए ग्रेडियंट, डेल इज सिंगल, डेल डॉट वी गिव्स यू द डाइवर्जेंस, एंड डेल क्रॉस वी गिव्स यू द इंफॉर्मेशन ऑफ कर्ल। यहाँ पर कहीं भी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव यूज नहीं हुआ। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब ये है, मेरा मतलब ये है कि डेल टू बाई डेल एक्स स्क्वायर या डेल टू वाई बाई डेल वाई स्क्वायर या डेल टू वाई बाई डेल जेड स्क्वायर मीन्स, या मैं ये कह सकता हूँ, अब एक छोटा सा मैं आपको कंसेप्ट क्लियर करके देना चाहता हूँ। देखिए, यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन हियर, देखिए,
अगर आप डेल का डॉट लेते हैं किसी डेल डॉट टी के साथ, ये क्या है, एक वेक्टर ऑपरेटर है, और ये क्या है, टी का ग्रेडियंट है, टेम्परेचर या किसी भी स्केलर क्वांटिटी का ग्रेडियंट है। तो अगर दोनों का आप डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करते हैं तो आप वेक्टर ऑपरेटर से फेमिलर हैं, और ये हुआ क्या, gradient of t. You know that gradient of t या gradient of a scalar quantity is always a vector, and you can easily calculate the dot product of two vectors here. तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट होगा तो i डॉट i इज 1, j डॉट j इज 1, k डॉट k इज 1, एंड यू कैन गेट दिस स्केलर ऑपरेशन। और ये सिंपली क्या है, ये क्या है, डेल स्क्वायर। यानी आप इस एक्सप्रेशन को कैसे लिख सकते हैं, अगर आपको ये ऑपरेशन मिला है तो आप इसे कैसे लिख सकते हैं, डेल स्क्वायर बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर और डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर ओवर डेल जेड स्क्वायर ऑपरेटिंग ऑन द स्केलर क्वांटिटी टी। और ये क्या है, ये डबल डिफरेंशियल ही तो है, किसका, डेल का, डेल स्क्वायर टी। तो ये है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स ऑफ ऑपरेटर डेल। अभी तक जो हमने पढ़ा वो सब फर्स्ट ऑर्डर थे, वहाँ कहीं भी हमने डेल टू की बात नहीं करी। डेल टू बाई डेल एक्स स्क्वायर, डेल टू बाई डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल टू बाई डेल स्क्वायर बाई डेल जेड स्क्वायर, ऐसा हमने कहीं नहीं पढ़ा। तो यहाँ जो कंसेप्ट है वो ये है कि आप इन सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स के बारे में पढ़ेंगे और डिस्कस करेंगे। यहाँ कुछ लॉज हैं जो आपको बताएंगे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स के बारे में, ठीक है। तो हियर इज फर्स्ट इज जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया, डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट। अगर आप डाइवर्जेंस निकालते हैं किसकी, ग्रेडियंट की, ठीक है, ये देखिए डेल डॉट दिस वन गिव्स यू द डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट एंड रिजल्ट इज दिस। कर्ल ऑफ ग्रेडियंट निकालते हैं तो आपको पास जीरो मिलता है। इसकी इंफॉर्मेशन आपको खुद देखनी पड़ेगी, जीरो आया क्यों। आप कर्ल निकालते हैं आईजे के फॉर्म में लिख के आप इसे कर सकते हैं। ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस ये आता है, डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल फिर से जीरो आता है, एंड कर्ल ऑफ कर्ल की इंफॉर्मेशन इसमें है, ठीक है। ये 5 सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, सबको आपको कैलकुलेट करना है, प्रैक्टिस करनी है, तो तब आपको समझ में आएगा कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या आता है। यहाँ दो जो रूल्स हैं इसमें हमारे पास जीरो मिलता है, ठीक है। कर्ल ऑफ ग्रेडियंट निकाले, डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल निकाले तो आपको जीरो रिजल्ट आता है। तो मैं इनको ऐसे याद रखता हूँ, कैसे याद रखता हूँ, आप यहाँ देख सकते हैं डी सी जी इक्वल टू जीरो। यानी आप डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल निकालें या कर्ल ऑफ ग्रेडियंट निकालें तो ये क्या आता है, हमेशा जीरो आता है। मैं ऐसे याद रखता हूँ, डी सी जी इक्वल टू जीरो। यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन एंड रिमाइंड दिस इन योर माइंड, ओके। देखिए डाइवर्जेंस पहले बार डी सी, डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल, डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल जीरो। दूसरा ऑपरेशन कर्ल ऑफ ग्रेडियंट, कर्ल ऑफ ग्रेडियंट जीरो। तो एक कॉन्सेप्ट, एक ट्रिक है, आप याद रटने वाली बात नहीं है, ट्रिक है, तो आप माइंड में ऐसे रख सकते हैं। तो इस जो लेक्चर में हमने स्टडी किया वो स्टडी किया एक कंसेप्ट कर्ल का, और हमने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव डिस्कस किए वेक्टर ऑपरेटर डेल के। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू everybody.